જન્માષ્ટમીના પાવન પર્વ ઉપર આપ સૌનું હું પ્રિયા ભટ્ટ સ્વાગત કરું છું. ગુજરાત ગૌરવ ચેનલ દ્વારા આપણે અહીંયા મળી રહ્યા છીએ અને કેટલો સુંદર મજાનો દિવસ આજે છે. હા, આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે અત્યારે કોરોનાનો સમય પસાર થઈ રહ્યો છે, તેમ છતાં પણ લોકોના મનમાં જે કનૈયાનો જે ઉત્સાહ છે, જે ઉલ્લાસ છે, એ ઓછો નથી થઈ રહ્યો. કનૈયાને અને લીલાને આપણે બંનેને સમાનાર્થી શબ્દો સમજી શકીએ. આપણે એમ કહી શકાય કે કણ કણમાં કૃષ્ણ છે અને ક્ષણ ક્ષણમાં કૃષ્ણ છે. જીવન આજે જ છે અને બસ આજે આપ જીવી લો. કોરોના છે, હા, બટ આપણે આપણા દિલની અંદર કૃષ્ણ ભગવાનનો જે ઉત્સાહ છે એ જરાય પણ ઓછો ના થવા દઈએ. અને એની સાથે જ કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય, હાથી ઘોડા પાલ કી જય, કનૈયા લાલ કી. આપણી સાથે અત્યારે એક હસ્તી મોજૂદ છે કે જેમને પરિચયની કોઈ જરૂર જ નથી. તેમ છતાં પણ હું થોડો નાનો ઇન્ટ્રોડક્શન આપવા માંગીશ કે આરજે રૂહાન, કે જે આરજે છે, રાઇટર છે, સિંગર છે અને ખૂબ સારા એક્ટર છે. એમ કહી શકીએ તો ચાલે કે 2018માં એમને જે વેબ સિરીઝ, ગુજરાતી વેબ સિરીઝનો જે સિલસિલો ચાલુ કરેલો અને 2018માં 2019માં એમની પુષ્કળ વેબ સિરીઝ આવી છે. બસ ચા સુધી તો બસ લોકોના મનમાં વસી ગઈ છે અને એટલી બધી પ્રખ્યાત થઈ છે કે પ્રેક્ષકોએ જાણે આમ પ્રેક્ષકોએ બીજા એપિસોડ, બીજા સિઝનની રાહ જોઈ હતી કે બસ હવે પ્લીઝ તમે બીજો એપિસોડ મૂકો, બીજા સિઝન મૂકો. અને એમ કહીએ તો આજે રૂહાન સર, હું તમને એમ પૂછવા માંગીશ કે તમે ગુજરાતી વેબ સિરીઝની એક નવી દિશા આપી છે કે જે પહેલાં આવું નહોતું. પહેલાં આપણે જે રૂરલ ગુજરાતી ફિલ્મ્સ જોતા એને ઘણો ટાઈમ થઈ ગયો, પછી હવે અર્બન ગુજરાતી ફિલ્મ્સ થોડા સ્ટાર્ટ થયા છે. બટ ફિલ્મ્સ અને વેબ સિરીઝ એ ટોટલ અલગ એક પ્લેટફોર્મ છે અને એને તમે નવી દિશા આપી છે. તો આમાં તમે શું કહેવા માંગો છો? कुछ नहीं यार, मेरे कहने के लिए कुछ ज़्यादा बच नहीं जाता है जब आप लोग खुद ही कह रहे हो कि मैंने कुछ किया है. तो अब ये इसको मैं एक तारीफ के तौर पे भी ले रहा हूँ कि भाई चलो आपको लग रहा है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है, एंड एट द सेम टाइम आई टेक इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कि अगर मैंने कुछ भी किया है और आपको ऐसा लगता है कि मैंने किया है तो अब मुझे उसको जस्टिफाई पूरी ज़िंदगी भर करना पड़ेगा. तो मैं उसके पीछे लगा हुआ हूँ कि एक अच्छी वेब सीरीज़ कर लेना वो कभी भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था. इसीलिए मैं रेडियो भी छोड़ा कि मुझे था कि લેટ્સ ગ્રો હાયર એન્ડ હાયર વેર યુ કેન. તો એક્ટરનું એવું હતું કે પહેલાંથી મને એક્ટિંગનું વધારે જ હતું. હું આરજેઇંગમાં માત્ર विद द ग्रीड ऑफ मनी एंड फैनहुड आई हैड गॉन टू आरजेइंग, पर मैं हमेशा से एक्टर था और मुझे था कि मैं इसी फील्ड में, और आज के बाद भी अगर कुछ इसमें कुछ इनोवेट कर पाऊँ, नॉट जस्ट बाय माई एक्टिंग बट बाय माई स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट या टीम वर्क, अगर मैं कुछ और ऐसा कुछ नया कर पाऊँ कि एक जैसे फिल्में चल रही है और एक वेब सीरीज़ आती है, तो ये રીતે ગુજરાતીમાં એક કોઈક નવો ટ્રેન્ડ હોય. जैसे मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं गुजराती में वेब बायोपिक बनाना चाहता हूँ. ગ્રેટ સર. કોઈક લિવિંગ લેજન્ડ હોય ગુજરાતનો, જે જીવતી હસ્તી હોય અને એની હાજરીમાં એના ઉપર કોઈક એવું ડોક્યુમેન્ટેશન બને कि જે ઉદાહરણરૂપ બને, પણ આ વેબ ઉપર થાય, વેબ બાયોપિક. तो ऐसा कुछ इनोवेशन हम करने का सोचते रहते हैं. અમે લોકો આજે ચેનલ થ્રુ આ ઇન્ટરવ્યૂ આપણો જઈ રહ્યો છે એ ગુજરાત ગૌરવ, એમની પણ સાથે અમારી ચર્ચાનો મુદ્દો હોય છે कि what all can we innovate in the field of media and communication. तो मुझे ये सब नया नया ट्राई करने में बड़ा मज़ा आता है. तो आई प्रॉमिस कि इसके बाद मुझे अच्छा तो बहुत ही लगा है बस चा के बाद, बट देन इट्स अ प्रॉमिस फ्रॉम माई साइड कि मैं ऐसा कुछ ना कुछ नया नया ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह. તો સર, આપણે એવું કહી શકાય કે હવે તમને નેક્સ્ટ એક નવા લેવલ ઉપર જોવા અમે જોઈશું તમને નવા લેવલ ઉપર. જે તમારી એક્ટિંગ સ્કિલ્સ છે એનાથી તો તમે બધાને પ્રભાવિત કર્યા જ છે, બટ એની સાથે જેમ તમે વાત કરી મીડિયાને ધ્યાનમાં રાખીને કંઈક નવું ઇનોવેટિવ કરવા માંગો છો, તો એમાં અમે તમને નેક્સ્ટ લેવલ પર જોઈ શકશું. ઇન્શાલ્લાહ ક્યું નહીં. અને જો એનું કારણ એટલું જ છે કે મને બહુ સભાનપણે એવું સમજાઈ જાય છે કે આઉટ ઓફ ઓલ ધ ફિલ્ડ્સ વોટ મેક્સ ધ ડિફરન્સ એન્ડ વોટ ચેન્જીસ ધ સોસાયટી ઇઝ આર્ટ. એવું કહેવાય છે ગુજરાતીમાં, બહુ સારું વાક્ય છે કે કળા એ બદલવાની તાકાત રાખે છે दुनिया ने. जो दुनिया में कोई नવો चेंज लावी सके तो ये है कला. तो मैं समझता हूँ कि इसी कला से बहुत गलत चीज़ें भी फैलती है. लड़कियों के बारे में हो
या कुछ ऐसे सीन्स हों जो आपके दिमाग पर गलत इफेक्ट डाल दे, या खून खराबा जो हम देखते हैं फिल्मों में, यू नो, तो ऑल ऑफ दैट इज समथिंग दैट आई डोंट लाइक। और मेरा प्रयास हमेशा ये रहता है कि क्यों ना उसे माइल्डली दिखाया जाए। अगर आपको रेप सीन भी दिखाना है तो आप फीमेल को उस नज़रिए से मत दिखाओ। आप रेप सीन के दिखाने के 10 तरीके होते हैं, उसमें से कोई और चूज कर लो, ये नहीं। तो मारो ट्राई तो ये है कि बी इट मीडिया और बी इट वेब और बी इट फिल्म टीवी जो भी हो, पर एंटरटेनमेंट जिसे लोग बहुत सीरियसली लेते हैं, लोग एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट की तरह नहीं लेते हैं। व्हेन वी वॉच फिल्म्स वी गो इनटू इट और हम उससे सीखते हैं, वी फील इट, राइट। तो मेरा कोशिश ये है कि मैं जो कुछ भी बनाऊं या जहां भी कुछ बनने में मेरा हाथ है तो वो ऐसा तो बनना चाहिए कि वो थोड़ा समाज हित में क्या खोए। जरूरी नहीं है कि मैं समाज सेवा करने निकला हूँ, बट किसी काम का तो होना चाहिए, क्योंकि लोग उससे सीखते हैं। One thing is to be understood by every entertainer that it's not just entertainment for everybody. Yes. It is something to be learned for everybody. तो वो मैं कर पाऊँ तो जिंदगी सफल है फिर, इंशाल्लाह। सही बात है, सही बात। आपने जैसे अभी बोला, आपने वुमेन का जिक्र किया कि सीन भी दिखाना हो तो उसके 10 तरीके हो सकते हैं। तो हम जैसे जन्माष्टमी में जो कृष्ण भगवान है, हाँ। हमने कृष्ण भगवान के जीवन में देखा है कि वो लोग हमेशा स्त्री पात्र से ज्यादा घिरे हुए हैं, चाहे वो यशोदा जी हो, राधा जी हो, मीरा जी हो, द्रौपदी हो जो उनकी सखा थी, गांधारी हो जो लास्ट में जब उन्होंने उनको श्राप दिया था। तो ये सारे जो स्त्री पात्र है, तो आपके जीवन में ऐसा कौन सा स्त्री पात्र है कि जिन्होंने आपको आपके लाइफ में, आपकी जर्नी में हेल्प आउट किया हो? बहुत है, और गांधारी भी एक तो है। तो ऐसा नहीं है, कुछ फीमेल ऐसी लाइफ में रही है जिन्होंने कहीं श्राप दिया या जिन्होंने अच्छा एक्सपीरियंस नहीं दिया, बट एट द सेम टाइम देयर हैव बीन मेनी फीमेल्स। मैं आज भी कभी सोचता हूँ कि अगर मैं कल को कोई बहुत बड़ा अवार्ड जीतूं तो वो जो अवार्ड स्पीच हम बोलते हैं तो उसमें क्या बोलूँगा, कभी कभार सोचता हूँ मैं। तो होता है आपको नाम सोचते कि आई वुड लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स, आई वुड लाइक टू थैंक गॉड, आई वुड लाइक टू थैंक द अवार्ड, ब्ला ब्ला ब्ला। पर मैं बहुत बार ऐसा सोचता हूँ कि मेरी जो स्पीच है उसमें डोमिनेंस जो है वो लड़कियों का होगा, ऐसा लगता है। स्टार्टिंग फ्रॉम माई मदर टू टिल डेट टू योर नेम, ऐसा है कि मैंने बहुत दिल थी वो मानू छूँ कि अ गर्ल इज़ अ वेरी, और अ फीमेल इज़ अ वेरी डोमिनेटिंग लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। अगर आपको समझ में आए कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, और उनके साथ का कोई भी एक्सपीरियंस कुछ सालों बाद क्या रंग लाएगा, अगर आप वो चीज़ समझ जाएं तो मुझे लगता है कि आप नहीं बढ़ सकते। उनके सपोर्ट, विरोध, कभी कभार कुछ लड़कियां जो होती है ज़िंदगी में आपको लगता है कि वो मेरा विरोध कर रही है, पर आपको पता नहीं है कि उसका 2 साल बाद क्या अच्छा सिला निकल कर आना है, वो आपको कतई अंदाज नहीं है। तो फीमेल इन जनरल, वो मैं बहुत, एक लोग कहते हैं ना देवी स्वरूप, तो वो एकदम देवी बात तो मैं नहीं कहता हूँ, बट इवन टुडे मैं इतना ही समझता हूँ कि अगर किसी फीमेल का स्टेटमेंट आपको ये लगा सकता है कि आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते, आप बर्बाद हो, वैसी किसी एक फीमेल का कोई अच्छा स्टेटमेंट आपकी जिंदगी बना भी सकता है। आपका दोस्त चाहे कितना सिखा ले आपको कि आप अच्छे हो, आप नहीं मानोगे। इफ अ फीमेल कम्स टू एंड शी मे बी योर मदर, सिस्टर, डॉटर, गर्लफ्रेंड, वाइफ, जो भी है, अगर वो आपको आके कहेगी कि आप अच्छे हैं, 2 पॉजिटिव बात करेगी, तो दुनिया समझा के थक जाए, लेकिन आप उनकी बात मानोगे, उतना पावर खुदा ने उन्हें दिया है। तो मैं सबको कहता हूँ कि यूटिलाइज इट, मेक फीमेल्स योर फ्रेंड्स फर्स्ट, even if it's your mother, consider the fact that she is a woman also. Yes. For somebody she is a wife, for you only she is a mother, but उसके कई और रोल्स हैं, उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए जब आप उसको सिर्फ मदरली पॉइंट ऑफ व्यू से परस्यू कर रहे हो। तो है, फीमेल का बहुत बड़ा हाथ है। और वो जो अवार्ड्स विनिंग स्पीच की मैं बात कर रहा हूँ उनमें भी मैं कहीं नाम लेने वाला हूँ इंशाल्लाह, और जल्दी समय आएगा वो इंशाल्लाह। और उसमें बहुत नाम लड़कियों के हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं टोटली यही लाइन को जस्टिफाई करने वाला हूँ कि विदाउट देयर सपोर्ट, विदाउट हर सपोर्ट इन जनरल, यू फॉरगेट थिंकिंग अबाउट गोइंग अहेड। आप भूल जाओ, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जैसे आपने सबसे पहले हम ફિમેલ જ્યારે પણ સૌથી પહેલા આપણે ફિમેલ શબ્દ કે સ્ત્રી શબ્દ કરીએ ત્યારે આપણા મગજમાં જે પહેલો શબ્દ મગજમાં ગૂંજે એ છે માં। તો કૃષ્ણ ભગવાનની જો આપણે એક વાત કરીએ તો કનૈયાજી જ્યારે નાના હતા અને ધૂળમાં રમતા હતા ત્યારે એમને યશોદાજી જોયું કે આ ધૂળમાં રમે છે ને ધૂળ મોઢામાં નાખે છે, તો યશોદાજી ફટાફટ આવી ગયા કે કનૈયા મોઢું ખોલ, ધૂળ બહાર કાઢ। તો કનૈયાજીએ મોઢું ખોલ્યું અને એ જોઈને યશોદાજી તો આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા કે અરે યાર આ શું, કારણ કે એમને
મોઢામાં આખું બ્રહ્માંડ દેખાયું, ભગવાન છે આખું બ્રહ્માંડ એમને દેખાયું અને આ જોઈ યશોદાજી આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. हाँ, તો ઘણી વખત આપણા જીવનમાં પણ એવા કોઈ બનાવો બન્યા હોય કે આપણા માએ આપણી કોઈ વાત સાંભળીને કે જોઈને, કોઈ એક્શન જોઈને કે સાંભળીને આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા હોય. તો તમારા લાઈફમાં તમારા એવું બન્યું છે ક્યારે કે તમે કંઈક કર્યું હોય અને એ જોઈને તમારા મમ્મી આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા હોય ને યશોદાની જેમ તમારા કાન પકડ્યા હોય કે અરે આ શું કર્યું? यार ऐसा तो मोमेंट बहुत नहीं आया जहाँ पकड़ा गया हूँ मैं, हाँ. क्योंकि मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ उस तरीके से. हाँ, अच्छी आई से तरह है. एवरीथिंग टू माय मदर एंड फादर. आई हैव द लवली पेरेंट्स एट होम. मैं बहुत कम घर जाता हूँ, पर जितना भी वो जो है वो हमेशा से एक ऐसा रहा है कि आई फॉल इन लव विद समबडी, आई विल गो टू माय मदर एंड टेल हर दैट ओके आई फाइंड हर ब्यूटीफुल एंड मैं इनके प्यार में हूँ. तो मेरे भाई साहब जो है वो बहुत छुपाते थे, पर मेरा ऐसा नहीं है. इवन माय फादर नोज अबाउट एवरी गर्ल दैट आई हैव फॉलन इन लव विद, आई हैव फॉट विद, or every mistake that I have committed or every success that I have achieved. They have an account of everything that I have done in general. तो कभी ऐसा छुपाने का मौका नहीं आया, पर कभी कभार ऐसा होता है कि उनको वो फील है जे कदाच पेलू भी है कि गोकुड़ना गिरधारी घेरे आवो, હા, जो वही बात है, एक एक्सटेंशन है इसका. तो वो मेरे माँ बाप भी कभी कभार कहते हैं कि गोकुड़ना गिरधारी आप भी. तो घर वालों को भी एक शिकायत है वो पीली ज्वाड़ी के गोकुड़ना गिरधारी घेरे आवो रे मार एक संदेशो के वो रे. तो मेरे को हर दिन ऐसा लगता है कि शायद देयर इज समथिंग दैट माय मदर और फादर वांट टू कम्युनिकेट विथ मी, और वो यही है कि क्या वो बच्चा वापस मिल सकता है कि जो नटखट करने. हाँ, जो हर रोज घर पर आता था, जो इतना समझदार नहीं था, हाँ, जिसको इतनी समझ नहीं थी कि वो एक माँ एक औरत भी है. तो माय मदर समटाइम्स शी फील्स वेरी सैड कि यार तुम्हें ये अक्ल नहीं आनी चाहिए थी कि मैं किसी की बीवी भी हूँ, मैं किसी की बहन भी हूँ, मैं किसी की बेटी भी हूँ, इन सब के साथ मैं तुम्हारी माँ हूँ. तो उनको ये अजीब भी लगता है कि यार ये आपको किसने सिखाया, आपको इतना ग्रोन अप नहीं होना चाहिए था. तो ऐसा वो होता है ना, वो मोमेंट अभी घर पर है कि माँ बाप बड़े होते हैं, लेकिन उनको जब बच्चा बड़ा होता है तो उनकी समझ नहीं आता है कि यार ये इतना चालाकी या इतना स्मार्टनेस कहाँ से आप लेकर आ गए, या इतना मेच्योर्ड. हमारे भी बारे में मत सोचा करो, आप तो छोटे बच्चे हो, आप हमसे पैसे भी मांग सकते हो. तो वो सारी चीज़ें जब वो मुझे देखते हैं तो वो उनको कृष्ण के यशोदा जी को जैसे अंदर वो पूरा ब्रह्मांड दिखता है, यहाँ ब्रह्मांड तो नहीं है, पर उनको लगता है कि ये जो नया ब्रह्मांड आपने अपने लिए बनाया है, कहीं आप एक दिन चले तो नहीं जाएंगे हमें छोड़ के. और मैं उनको हर बार ये एश्योरेंस देता हूँ कि कहाँ जाएंगे भाई. तो यानी कि जो नटखटपन है कृष्णा हाँ. जी का, वो अपने मन से अपने दिल से कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे आप कितने हाँ, भी वो ये चाहते हैं, पर मैं कितने उसको भी बरकरार बड़े नहीं बच्चे कर पाता हूँ कि मैं वो चीज़ें नहीं करता हूँ जो कृष्णा जी यशोदा जी को परेशान करने के लिए करते थे. वो मुझे कभी कभार लगता है कि यार वो तो करे ज़माना हो गया, अब ये तो कब करेंगे कि घर वालों के साथ कुछ धेंगा मस्ती हो जाए या किसी के साथ चलो कुछ मस्ती कर लेते. वो मूड नहीं बनता है. तो अब जब मम्मा मुंह खोल कर चेक करती है तो ब्रह्मांड तो नहीं दिखता है, लेकिन जो दिखता है वो उनको भी थोड़ा सा चौंकाने वाला है कि, और उनको एक डर हमेशा रहता है जो हर माँ बाप को होता है कि हमारे बच्चे इतना आगे ना चले जाए कि हमें छोड़ के चले जाए. तो मैं उनको भी कहता हूँ, यदि इंटरव्यू देख रहे हो तो मैं कहीं छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, यहीं हूँ. तो बेफिक्र रहिए, आप I know. बिल्कुल चिंता मत करिए. आई नो. और अभी हमने देखा कि रूहान जी ने एक बढ़िया सा गाना गाया. हाँ. तो मैंने आपको बहुत सारे वालम जी गाना गाते हुए सुना है, फिर चांदने को हो, चांदनी को. ये सारे गाने सुने हैं मैंने आपके. तो ये एक अर्बन गुजराती वाले भी आप गाने गाते हो, और अभी आपने जो 2 शब्द गाए बुआ सो जी. वो एक फोक गुजराती सॉन्ग है, फोक True. गुजराती सॉन्ग है, और आपने इतनी बढ़िया तरीके से गाया. तो दोनों आप एक्सट्रीम पॉइंट में कैसे आपको इंटरेस्ट आया, आप कैसे अट्रैक्ट हुए कि नहीं मुझे अर्बन भी करना है और मुझे ये फोक म्यूजिक भी करना है? बस पहले तो यार जो जिसने भी ये रूल बनाया है कि एक अर्बन इंडस्ट्री है, एक रूरल इंडस्ट्री है, ऐसा नहीं है. आई व्यू इट एज एन इंडस्ट्री, आई व्यू इट एज अ गुजराती फिल्म इंडस्ट्री जो एज अ होल है, एंड उसमें ना कोई रूरल है ना कोई अर्बन है. और मैं बहुत कोशिश करता हूँ, मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ऐसा कुछ वेब सीरीज में बनाऊँ और उसमें कोई गाना मैं गमन सांतल बुआ जी से गवाऊँ. जबकि जिगरा है, बहुत सारे सब अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ तो हम काम कर ही रहे, पर हमारा मगज में आइडियाज़ आया करे कि मुझे ये नहीं पसंद यार. मुझे ऐसा है कि हाँ भाई, अगर बुआ जी की आवाज़ वेब सीरीज के किसी एक सीन में अगर मैं यहाँ फोक स्टाइल में फिट करूँ तो इट विल बूम द व्यूअर. तो वो समझ के कारण शायद मैं देखता हूँ.
મને બહુ ગમે છે. મને જે ગરબાની પેલી બીટ છે, હું આઈ લિસન ટુ કિંજલ દવે. आई ऑलवेज व्हेनेवर आई मीट किंजल दवे आई टेल हर दैट यू आर माय ट्रैवल पार्टनर. जब भी मैं कहीं घूमता हूँ तो मैं आपके गाने सुनता हूँ. गीता रबारी છે, गमन साथल जी છે. तो ये सब पता नहीं, मेरे को कोई रीज़न नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है इनको चाहने के पीछे की, पर वो मुझे अपील करता है. मुझे उनके गाने बहुत अपील करते हैं क्योंकि वो बहुत रूटेड होते हैं और एक कल्चरल बात होती है. जैसे इसमें भी है ना कि गोकुड़ ना गिरधारी घर आओ, तो वो सिर्फ एक गाना नहीं है, वो मुझे टच करता है. आई कैन फील इट. तो वो जैसे वालम टच करता है वैसे वो मुझे टच करता है. तो और અમે લોકો બહુ કોશિશ કરીએ છીએ કે कुछ करके एटलीस्ट मैं तो इस चीज़ को बाय ना करूँ कि देर इज दिस रूरल गुजराती फिल्म इंडस्ट्री एंड देर इज दिस अर्बन गुजराती फिल्म इंडस्ट्री. आई कॉल इट फिल्म इंडस्ट्री इन गुजरात. आई कॉल इट नॉट इवन गुजराती फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री ऑफ गुजरात, जो शायद कभी किसी दिन कुछ चीज़ हिंदी में या इंग्लिश में भी बना दे પણ અમે પેલું ગુજરાતી પણ હોય. તમે અમેરિકામાં બેસીને જોતા હોય મારી વેબ સિરીઝ હિન્દીમાં, પણ તમને એમ થાય કે ગુજરાતી જ બનાવેલું, राइट, कि आनी बातમાં ક્યાંક गुजरात છે. તમે આજુબાજુ सीन सीनरी जो છે गुजरात છે. तो वो हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि गुजराती पणु जैसे ना, लैंग्वेज कोई भी हो सकती है. सो आई वांट टू कम आउट ऑफ ऑल द बैरियर्स ऑफ लैंग्वेज, रूरल, अर्बन, एंड मेक समथिंग व्हिच इज गुजराती इन नेचर, सो दैट कैन मेक इम्पैक्ट इंशाल्लाह. ડેફિનેટલી સર. અને આપણે જન્માષ્ટમીનો પર્વ છે આવતીકાલે, તો અમે એવી થોડી ઈચ્છા રાખીએ કે તમે હમણાં જે ગીત ગાયું ગોકુળના ગિરધારી, અને એ એવું ગીત છે કે જેમાં આપણને ફીલ થાય કે ના, આમાં સાંભળીને જ આપણને લાગે કે ક્ષણ ક્ષણમાં આપણે કૃષ્ણને સાંભળી રહ્યા છીએ. તો હું તમને એવું રિક્વેસ્ટ કરું કે આપ થોડું ડન. मेरी जो एक फेवरेट लाइन है, અને આ વાળું જે મને યાદ છે એ ભુવાજી વાળું સોંગ છે ગોકુળના ગિરધારી. એક લાइन है जो मैं बहुत सुनता हूँ एंड इट टचेस माय हार्ट, एंड दैट इज मारू हरि भजवानो मना रे मार बाळा ते पण ना मेलीने सीध जाऊ सो माया ने हवे मेलीने गोकुळना गिरधारी घरे आवो ने मार एक संदेशो केवो रे. વાહ, दिस इज द लाइन. थैंक यू. ગ્રેટ સર. और इनका एक और है जो आज के मौके पर बहुत सेट होता है. जन्माष्टमी जो તમે વાત કરી એના ઉપર, that ગોકુળના ગિરધારી કા છે, and that one is સાયબોરે ગોવાડિયો. How can we forget? तो साइबोरे गोवाडियो इज अगेन अ वेरी पुराना ट्यून है, लेकिन भुवाजी જ્યારે भी गाया ત્યારે મને બહુ ગમે છે पर्सनली. एंड दैट इज, पता नहीं गाना कितनी बार गाऊं, मुझे गाने में बड़ा मजा आता है. इट स्टार्ट्स નથી છોડવી હે તારા પહોળાને પાસાવાળ, હે તારા પહોળાને પાસાવાળ. સાહેબો રે ગોવાડિયો ગોવાડિયો મારો વાલીડો રે ગોવાડિયો. સાહેબો રે ગોવાડિયો રે મારો વાલીડો રે ગોવાડિયો વાલ. હે સાહેબો રે ગોવાડિયો રે મારો વાલીડો રે ગોવાડિયો. घो घो वालण गिरने रे मारे साहिबा हारो हार से. वैसे बहुत लंबा गाना है लेकिन मुझे इतना याद है. પરફેક્ટ સર. આપણે એમ કહીએ ને કે આ જન્માષ્ટમીના પર્વ ઉપર I જે know. લોકોને મજા કરાવી દીધી છે એ ખૂબ મોટી વાત છે. થેન્ક યુ Thank સર you સો so much, ma'am. સર, અત્યારે એક મુદ્દો એવો છે જે હું પર્સનલી, મને એવું લાગે છે કે મારે તમને પૂછવો છે बिल्कुल. કે કૃષ્ણ ભગવાને જ કહ્યું છે કે જીવનનો બીજો અર્થ છે સંઘર્ષ. ગીતાજીમાં એમને આ વાત કરી છે કે બીજો જ અર્થ સંઘર્ષ છે. તેમ છતાં પણ હાલના જનરેશનમાં આપણે અત્યારે જોતા હોઈએ છીએ કે લોકોનો સ્ટ્રેસ મેનેજ કરવું થોડું અઘરું લાગી ગયું છે. અને રિસન્ટલી આપણે જે સુશાંત સિંહ સર રાજપૂતનો જે કેસ જોયો છે, તો એમાં એવું લાગે ક્યાંક કે ભાઈ સ્ટ્રેસ લેવલ યંગસ્ટર્સની નથી મેનેજ થતું. તો એ વિશે તમે શું કહેવા માંગશો કે કઈ રીતે આને આગળ જોવું જોઈએ? તમારી કોઈ ટિપ્સ હોય? टिप्स
पता नहीं यार ये, क्योंकि बहुत थिन लाइन है. आपका सवाल भी अच्छा है, संघर्ष है. હું એ વાતને પકડીશ જે કૃષ્ણવાળી વાત છે કે એક સંઘર્ષ છે. અને હું કાલે પેલી આર્યા વેબ સિરીઝ જોતો હતો. હા उसके अंदर એ લોકોએ બહુ સરસ એન્ડ આપ્યો છે. એમાં એ લોકો એક બહુ બદતર પરિસ્થિતિમાં એ પ્રોટેગોનિસ્ટને બતાવે છે અને એની અંદર પાછળ એક સોંગ વાગતું હોય છે. એ આ છે, તું કર્મ કર, તું કર્મ કર, તું કર્મ કર. ધ પર્સન ઓન ધ સ્ક્રીન ઇઝ કન્ફ્યુઝડ કે હું આ કરું કે નહીં કરું, કેમ કે સામે મારી ફેમિલી છે. એ એક્ઝેક્ટ પેલી જ સિચ્યુએશન છે અર્જુનવાળી અને કૃષ્ણવાળી, કે હું કરું કે નહીં કરું. એન્ડ આઈ સો ન્યુ ઇટ કે આ પાછળ આ વાગી રહ્યું છે તો આ મતલબ કરશે. And she realizes that be it my family, be it my near ones or dear ones, but I have to do the work. कर्म. तो मैं ये कहता हूँ कि कोई फिलोसॉफिकल एंगल में ना लेते हुए या इसको कोई हवाई की बातें ना बनाते हुए, वन थिंग इज टू बी लर्न हियर दैट कर्म कर. बहुत सीधी बात है. और कर्म कर मतलब कुछ भी कर्म करो. और एक बात समझ लो कि जिंदगी में प्यार कर्म नहीं होता है. जे भूल मैं अपन बहु वर्षों સુધી કરી છે, मुझे लगता है कि बहुत लोग अभी भी करते हैं. मुझसे भी कभी कभार हो जाती है, क्योंकि हमारा एक इनबिल्ट मैकेनिज्म है प्यार पाने का. हम सबको प्यार चाहिए, पर उसके चक्कर में जो जितना वक्त ज़ाया हो जाता है, उतनी एनर्जी से अगर आप जिंदगी में कुछ काम कर लें, कुछ भी, तो वो कहते हैं ना कि कर्म कर बोला है. गीता में भी जो बोला है, ये कृष्ण भी कह रहे हैं, कर्म करने को कह रहे हैं, प्यार करने को नहीं कह रहे. आप देखो किसी भी माइथोलॉजी को पढ़ लो, वो कह रहे हैं कि कर्म कर, और उसी में है रास्ता. ये मुझे लग रहा है, मैंने फील नहीं किया है, पर मुझे लग रहा है कि इट होल्ड्स इम्पोर्टेंस. कि अगर आप कुछ भी एक काम पकड़ ले हर सुबह उठ कर कि मुझे ये काम करना है, और रात तक अगर आप उसका अकाउंटेबिलिटी चेक करें कि मैंने काम किया कि नहीं किया, छोटा सा ही काम क्यों ना हो, तो अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो आप दुनिया की हर वो झमेले में फंसेंगे जहाँ पर एक आदमी आके फंस ही जाता है. तो उसके बाद फिर आप दुखी भी होंगे कि यार जो करना है वो हो नहीं पा रहा है. तो बेसिक थिंग इज यू जस्ट डू इट, डू वॉट एवर यू फील लाइक. लोगों को सही लगे गलत लगे वो नंबर 2 की बात है. आप किसी से प्यार भी करते हो तो वो क्या सबको सही लगता है? सबको गलत लगता है. तो आप कुछ काम भी करोगे तो किसी को सही लगेगा, किसी को नहीं लगेगा. तो प्यार करते हो ना, अगर किसी को सही नहीं लगता है तो काम करो. और काम ऐसा कि पकड़ ही लो कि हर सुबह उठ के मुझे ये काम करना है जिससे इतना कुछ अमाउंट क्रिएट होगा. तो काम કરવાનું એ બહુ અગત્યનું છે. એ મને કાલની વેબ સિરીઝમાંથી બી લાગે છે, મને આ માઇથોલોજીકલ રેફરન્સથી બી એવું લાગે છે. અને જો તમે મને બી પૂછો તો આપણો જિંદગીમાં નિયમ જ છે ને, આપણે બધાને કહીએ છીએ કે જિંદગીમાં પ્રેમ બધું જ નથી. એટલે રોમાન્સ લવની વાત કરું છું કે સારો પ્રેમ કરવાની નિયતમાં જિંદગી ના બગાડો, સારું કામ કરવાની પાછળ દોડો. સારું કામ કરશો ને તો સારો પ્રેમ જરૂર મળશે. ખાલી સારો પ્રેમ કરવાના ચક્કરમાં દોડશો ને તો આખી જિંદગી તબાહ થઈ જશે. પ્રેમ તો નહીં મળે. 40 વર્ષે તમને એમ થશે કે કંઈ કામ કરવા બી નથી બચ્યું હવે, જેના માટે રોજ સવારે ઉઠીએ. तो सुबह उठने की वजह बने ऐसा कोई काम पकड़ लो. तो ये जो बात इन्होंने बोली और वो जो वेब सीरीज का रेफरेंस है कि तू कर्म कर, उससे बहुत कुछ बच जाओगे, बहुत बच जाओगे जिंदगी में. एंड इट विल बी फन. आप अभी जैसे यहाँ बैठी हैं तो आप दिन भर में बहुत काम करती होंगी, कभी फन भी करती होंगी, लेकिन आप आज जब काम पर हो तो यू टेल देम हाउ डू यू फील. यू जस्ट फर्ज कीजिए कि आप ये काम दिन के 7 घंटे कर रही है, तब आपको कैसा फील होगा. यू लुक एट योर स्माइल, look at the moment of achievement that you have in your mind. बस वही गेम है कि कोई भी काम हो आप पकड़ लो और दिन भर उसको कुछ 4-5 घंटे दे दो. પછી જુઓ તમને કૃષ્ણ બી સમજાઈ જશે और दुनिया भी समझ जाएगी. ગીતાજીનો સાર પણ સમજાઈ જશે. ઇન્શાલ્લાહ. જેમ કર્મ કરવાની વાત કરી છે કે કર્મ કરતા રહો, ફળની ઈચ્છા ના રાખો. આ એક મોટો ઉપદેશ હતો જે કૃષ્ણ ભગવાને આપણે સૌને આપેલો છે. અને જો આ વાત જ આપણે સૌ ગળે ઉતારી લઈએ તો બસ જીવન સુખ જ સુખ છે. અને ત્યારે આપણને હરેક ક્ષણમાં કણમાં કૃષ્ણ દેખાશે અને મહેસૂસ પણ થશે. તો આ સાથે જ આપણે जन्माष्टमी की खूब खूब शुभकामनाओं आपको भी और गुजरात गौरव को भी, सबको. અને આ મંત્ર જીવનમાં અમલ થાય એવી દુઆ બધા. તો ગુજરાત ગૌરવ ટીમ તરફથી આપ સૌને જન્માષ્ટમીની હાર્દિક શુભકામનાઓ. नमस्कार. शाहरुख खान का वो गाना याद आ गया. कौन सा? सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये है क्यों पिघलने लगा, मैं ठहरा रहा ज़मीं चलने लगी, धड़का ये दिल सांस थमने लगी. ओ क्या ये मेरा पहला
पहला प्यार है सजना, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है। Shit, I remembered the entire lyrics part. मैंने इसको सालों के बाद गाया है और मुझे पूरा लिरिक्स याद था। और अगर आप आगे भी आप गाओगे तो आपको पूरा अंतरा भी याद क्या था अंतरा क्या था क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है, क्या खूबसूरत हाँ पल। क्या खूबसूरत है पल, सब कुछ रहा है बदल, सपने हकीकत में जो ढल रहे, क्या सदियों से पुराना है रिश्ता ये हमारा, ये रिश्तों से हम मिल रहे हैं। सूरज हुआ प्यासा चांद जल। ओके अब मैं लिरिक्स भूल रहा हूँ लेकिन मुझे याद था। बट यू आर राइट कि मुझे अंतरा याद हो गया। वाओ थैंक यू। सर आपने जैसे बोला हाँ। कि शाहरुख खान के आप फैन हो वो सबको पता है। हाँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये मध्यम गाना सुन के ही आपने वो वाला इश्क नो ओह माय गॉड somebody caught the clue। तो वो दोनों बहुत ही मैच हो रहा है। पता नहीं है लेकिन बलराज का जो कॉम्पोजिशन आप वो सुनोगे तो या तो फिर इनबिल्ट मैकेनिज्म भी हो सकता है कि मैं जब भी गाता हूँ तो ऐसा ही लगता है क्योंकि बलराज वाला शाहरुख वाली नहीं है। आई नो मे बी ये हो सकता है, आप कह सकते हैं आई मस्ट पे रॉयल्टी टू शाहरुख ना, नहीं तो वो आएगा क्या कर रहे हैं भाई गाने में भी मुझे कहाँ से लाए। बट नो बट यू आर राइट क्योंकि मैंने खुद भी अपना जो इश्क नो रंग चढ़े, जब हमारे पास दोनों वर्जन है, बलराज वाला भी है जो ओरिजिनल सॉन्ग है एंड देन माइन वन, सो आई लिसन टू बोथ। मुझे भी लगता है कि हाँ सुरताल में तो हम बलराज से बहुत कम ही है लेकिन जो साउंड भी कर रहा है वो काफी अलग है। दोनों की वॉइस काफी अलग साउंड करती है, बलराज का अपना एक अलग टेक्सचर है और मेरा आवाज का टेक्सचर अलग है। वो आप जो कह रही शायद ऐसा हो सकता है सर इसीलिए तो आप पूरे जो रूरल गुजराती है और हाँ। अर्बन गुजराती है वो दोनों को बहुत ही इंशाल्लाह। मैच करते हैं। हम जरूर एंड आई अपील कि आप उसमें कुछ नेक्स्ट लेवल जल्दी लाओ। ये आदमी खड़ा है आपके गुजराती साथ वेब सीरीज में ये जल्दी लाओ। वी वांट टू सी नहीं नहीं इंशाल्लाह एंड वी आल्सो वांट टू सी यू देयर इंशाल्लाह, है ना। दुआ कीजिए। मिलते हैं पंकज भाई। थैंक यू दादा। थैंक यू सर। थैंक यू। आओ चाय पीते हैं।